خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے بدحال کراچی والوں کی سنی گئی ہے کہ الیکٹرک کو رات کے وقت لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایات، انتہائی ضرورت کے وقت بھی 1 گھنٹے سے زیادہ بجلی بند نہ کی جائے۔ نیپرا اتھارٹی نے 7 دن میں عمل درآمد رپورٹ بھی مانگ لی۔ ہدایات پر عمل نہ ہونے پر کی الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی کا انتہا۔ اشرف خان رپورٹ کریں گے اس پر۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کے الیکٹرک کو وارننگ دے دی۔ لوڈ شیڈنگ سے بدحال کراچی والوں کی دعائیں۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کے الیکٹرک حکام کو رات کے اوقات لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی سختی سے ہدایت دے دی۔ نیپرا نے لوڈ شیڈنگ انتہائی ضرورت کے وقت بھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہ کرنے کی سخت ہدایت دی۔ نیپرا اتھارٹی نے کے الیکٹرک کو ہدایت کی روشنی میں 7 دن میں رپورٹ جمع کروانے کی بھی ہدایت دے دی۔ نیپرا نے صاف کہا ہے کہ ہدایت پہ عمل نہ کرنے کی صورت میں کے الیکٹرک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور دوسری جانب بجلی لوڈ شیڈنگ نے شہرکات کے رہنے والوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ کہیں اعلانیہ اور کہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے کاروباری زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا ہے۔ ایک طرف لوڈ شیڈنگ اور دوسری طرف بھاری بل اور زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے اس پر۔ شہر کے زیادہ تر علاقوں میں 6 گھنٹوں سے لے کر 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق کہتے ہیں کہ الیکٹرک عوام پر ظلم کر رہی ہے۔ MQM رکن سندھ اسمبلی فیصل رفیق بولے، عوام طویل لوڈ شیڈنگ سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور بھاری بھرکم بل شہریوں کے ہلا کر رکھ دیے دل۔ تاجر اور عوام سبھی پریشان۔ شہر قائد کے عوام مہنگی بجلی استعمال کرنے کے باوجود سکون میں نہیں۔ زیادہ تر علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ نے زندگی عذاب بنا دی۔ ایئرپورٹ ٹیلی فون ایکسچینج بریلی کالونی ناتھا خان میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ باغ ملیر غازی ٹاؤن گلشن اکبر کالا بورڈ میں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ عزیز آباد کے علاقے بنٹوا سوسائٹی میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ بلدیہ کے فیڈرل بلال کوچ میں 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی۔ جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق کا سٹی 21 سے گفتگو میں کہنا تھا کہ الیکٹرک نے شہریوں کا سکون چھین لیا ہے۔ مہنگی بجلی دینے کے باوجود لوڈ شیڈنگ سے نجات نہیں مل سکی۔ 30% آبادی 30% آبادی ایسی جہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی اور بل یہ پورے لیتے ہیں۔ اچھا، اگر ان کو کہا جائے کہ آپ جو بل لے رہے ہیں ایسا کریں نا کہ نیپرا کے قانون کو تبدیل کرا دیں۔ اب پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جو جرم کرے اس کو ہی اس کی سزا دی جائے۔ تو ایک جرم میں نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا بل اسٹار کسٹمر ہوں، تو میرے گھر پہ کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ MQM کے رکن سندھ اسمبلی فیصل رفیق کے بھی کے الیکٹرک پر شدید تنقید۔ کہا کہ طویل لوڈ شیڈنگ سے گھر کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے، حکومت فوری ایکشن لے۔ صرف لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہے، بجلی کے بل بھی، اضافی بل کا بھی ایشو ہے سب سے بڑا اس شہر میں کہ یہاں IPP کے تھرو اضافی بل لیا جا رہا ہے کراچی کے لوگوں سے جو پاکستان اکنامکس میں اکٹھا ہے۔ کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ شہر کے 70% علاقے لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں 6 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ علاقے میں ہونے والے نقصانات کی شرح پر منحصر ہے۔ صدر الائنس آف مارکیٹس کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ ہفتے کو صدر کی مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلیں گی۔ تاجر رہنما فہیم نوری بولے کہ تاجروں کا وفد ہفتے کو گورنر سندھ سے ملاقات کرے گا۔ گورنر سندھ کے سامنے تحفظات رکھے جائیں گے۔ تو آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کے سامنے تحفظات رکھے جائیں گے۔ صدر الائنس آف مارکیٹس کا ہڑتال ختم کرنے کا یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ ہفتے کو صدر کی مارکیٹیں معمول کے مطابق کھلیں گی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ عوام گھر کے کرائے سے زیادہ بجلی کا بل ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ چیئرمین FPCCI ایڈوائزری بورڈ پھٹ پڑے۔ زاہد حسین کہتے ہیں پیسہ عوام نے نہیں لوٹا تو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ عوام کی بڑھتی ہوئی بے چینی اور اشتعال کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتا ہے۔ حکومت بر وقت اقدامات کر کے صورتحال کو بگڑنے سے بچا لے۔ لوٹ مار کر کے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ موڈ لوٹ مار کے سلسلے کو ختم ہونا چاہیے ورنہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بجلی کے بلوں کے معاملہ پر عوام اور بجلی کے اداروں میں محاذرائی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب عوام کو آمدنی سے زیادہ بجلی کا بل ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے معمول بن گئے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور بلوں کے مسئلے پر بھائی بھائی کا خون بہا رہا ہے۔
बिजली के शोबे में नुकसानात और कैपेसिटी पेमेंट की सज़ा सनतों और अवाम को दी जा रही है। अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी वक्त भी बेकाबू हो सकता है, इसलिए हुकूमत बर वक्त इक़दाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाए, जो कि इसके हक़ में बेहतर रहेगा। मुल्क में कायम 80% IPPs मुकामी अफराद यानी अशराफिया और हुकूमत की अपनी है, जिन्हें डॉलरों में उनके हक़ से बहुत ज़्यादा अदायगी की जा रही है। अब इस लूट मार के सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से सताए शहरियों के लिए उम्मीद की किरण। एक्सपो सेंटर में सजा सोलर एनर्जी का मेला, नुमाइश में 100 से ज़ायद कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर में रंगारंग मेला सोलर एक्सपो में शहरियों का हुजूम उमड़ आया। सिंध बैंक ने भी नुमाइश में अपना स्टॉल लगाया और शहरियों को आसान किस्त पर सोलर की खरीदारी के लिए कर्ज फराहम करने की स्कीम का आगाज किया। फाइनेंसिंग की जो हमारी टेनर या आप साल आप कह सकते हैं जो फाइनेंसिंग की वो 1 से लेकर 7 साल तक की ये सहूलत हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को। इसके अंदर कम आमदनी वाले अफराद भी हैं, SME भी हैं, जिनके स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले भी हैं और कॉर्पोरेट भी हैं। सिंध बैंक ने सोलर बैंक की खरीदारी आसान बना दी। सिंध बैंक ने सोलर एक्सपो नुमाइश में स्टॉल लगाया और सोलर के लिए आसान कर्जा स्कीम मुतारफ करवा दी। नुमाइश में मुकामी सतह पर 3 व्हीलर मूव नामी रक्षा और कैंपस ट्रांजिट नामी सीटर शटल मुतारफ करा दी गई। मूवा नामी रक्षा घरेलू इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मूवा की बैटरी 110 किलोमीटर सफर तय करने की सलाहियत रखती है। कैंपस ट्रांजिट नामी शटल में 11 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। शहरियों की जानिब से दोनों मसनूआत को बेहद पसंद किया गया। प्राइम एक्सप्रेस जितने भी गैलेक्सी सीरीज़ के इन्वर्टर हैं सारे मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक पावर है, डुअल आउटपुट में है, वाईफाई बिल्टन है और हाइब्रिड है, जो कि विद बैटरी और विदाउट बैटरी वर्क करने की सलाहियत रखते हैं। 3 व्हीलर के अंदर पाकिस्तान में एक ही टिपिकल शेप आ रही थी, तो हम उसको एक मॉडर्न लुक देना चाह रहे थे। और ये 3 व्हीलर जस्ट एक रिक्शा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि एक घरेलू इस्तेमाल के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी लोग इसको ले सकते हैं। प्राइस सुन के ज़रा मतलब वो नाउमीदी से हो गई कि एक आम आदमी नहीं कर सकता। ये 15 लाख का है रिक्शा और ये 40 लाख का है, और उसकी बैटरी भी लाइफ भी 2 साल की वारंटी है, इसके बाद चेंज करनी पड़ेगी। ये तो वेल मेंटेन्ड है, इसकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, इसमें बैठने की जगह है वो बड़ी अच्छी है, इसकी वर्थ बहुत अच्छी है, तो आप बड़ा इजीली, और सबसे बड़ी बात ये पैक है। नुमाइश 27 जुलाई तक जारी रहेगी। सिंध हुकूमत ने असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी ख़त्म कर दी। पाबंदी वज़ीर दाखिला सिंध की मंजूरी से ख़त्म की गई है। 1 अगस्त से हर ज़िला में असलहा लाइसेंस का इजरा होगा। डिप्टी कमिश्नर्स लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू कर देंगे। नोटिफिकेशन जारी। MD साजिद जोकियों को वाटर बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। स्टील मिल CEO के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी किया। जबरी निकाह केस में मकामी अदालत ने 5 साल बाद मुलजिम को सजा सुना थी। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में रुकन सिंध असम्बली साजिद जोकियों को वाटर बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। स्टील मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने CEO स्टील मिल और दीगर फ्रैकीन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फ्रीकैन से 19 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। लड़की को घर से अगवा करके रेप और जबरदस्ती निकाह का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वस्ती ने 5 साल बाद मुकदमा निपटाते हुए मुल्जिमान को सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिम इम्तियाज को 10 साल कैद मुशक्कत की सजा सुना दी और 10,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटनी होगी। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिम की जमानत मनसूख करके इसे गिरफ्तार किया जाए। हमारा टैक्स निज़ाम मसावी नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने बजट में तनख्वाहदारों पर भारी टैक्स आयद करने पर सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कहा कि पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके की आमदनी पर टैक्स भारत से 9 गुना ज़ायद है। बजट में पाकिस्तान की लाख रुपए तनख्वाह भारतीय रुपए में 30,030 रुपए बनती है। और बुलंद शरई सूद और बेहतर मुनाफा मिलने पर सरमायाकारों की बैंकों में दिलचस्पी। 1 साल में बैंक डिपॉजिट्स 5,614 अरब रुपए इजाफे के बाद मुल्क की तारीख में पहली बार 31,000 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए।
बैंक डिपॉजिट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी। बुलंदशरह सूद पर सरमायाकारों की बैंकों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में बैंकिंग डिपॉजिट में तकरीबन 22% का बड़ा इजाफा हुआ। जून 23 से जून 24 तक बैंक डिपॉजिट में 5,614 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बैंक डिपॉजिट जून 24 तक बढ़कर 31,121 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। जून 23 में बैंक डिपॉजिट 25,507 अरब रुपए पर थे। एक माह में बैंक डिपॉजिट में 1773 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मई 2024 में बैंक डिपॉजिट 29,348 अरब रुपए पर थे। साल 2024 के पहले 6 माह में बैंक डिपॉजिट में 3,581 अरब रुपए का इजाफा हुआ। बैंक डिपॉजिट 27,540 अरब रुपए से बढ़कर 31,121 अरब रुपए तक पहुंच गए। माहिरीन का कहना है कि बुलंदशरह सूद होने की वजह से बेहतर मुनाफा मिल रहा है। बेहतर मुनाफा मिलने पर सरमायाकारों की जानिब से बैंकिंग डिपॉजिट मुसलसल बढ़ रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 21। इंसानी जानें बचाने के लिए सिंध गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोरंगी के प्रिंसिपल का अहसन इक़दाम। तमाम तलबा के फर्स्ट एड की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। ट्रैफिक हादसात और वाक़यात में इंसानी जानों को बचाने का मिशन। सिंध गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कुरंगी ने तुलबा की फर्स्ट एड ट्रेनिंग शुरू कर दी। प्रिंसिपल शबीर हुसैन झतियाल का कहना है कि आए रोज रोड और दीगर हादसात में इजाफा हो रहा है। इस तरह की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तुलबा को ट्रेनिंग मिलने के बाद अगर रास्ते में जख्मी मिलेंगे तो वो उन्हें फौरी तिबी इमदाद फराहम करेंगे। हमने ये सोचा कि ये जो हमारे बच्चे मोटरसाइकिलों पे, बसों में, इंडस्ट्रियल एरिया से रोज़ इधर आते हैं और बहुत से हादसा भी हो रहे होते हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को लाइफ सेविंग की वो अमल सिखा दें कि ये चलते फिरते तमाशा देखने के बजाय ज़िंदगी बचाने के अमल में शुरू हो। तो इस हवाले से हमने फ़र्स्ट एड की BLS की ट्रेनिंग शुरू की, जो अपने कॉलेज में भी दी और एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ एजेंसीज़ की वजह से जदीद तरीन एजुकेशन दी उनको ज़िंदगी बचाने की। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने कहा कि वजीर सियासत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पीचोहो और सेक्रेटरी सियासत रिहान बलोच की हिदायत के मुताबिक तुलबा व तालबात को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग व तरबियत और तालीम का बेहतर माहौल फराहम कर रहे हैं, ताकि हमारे तुलबा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपना और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कैमरा मैन अजलान के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। नाज़रीन, कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गई। कोरंगी में वाहगा बॉर्डर पर लहराने के लिए बड़े कौमी परचम की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ साइज के झंडों की छपाई, कटाई, सलाई और पैकिंग। मुंतज़मीन का कहना है कि यौमिया एक शिफ्ट में 5 से 10 हज़ार झंडों के ऑर्डर मिल चुके हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखेंगे। कौमी परचम आज़ादी के जश्न की अहम पहचान। DIP फ्लैग कंपनी की जानिब से कोरंगी में वाक़ई फैक्ट्री में जोर शोर के साथ हर साइज के कौमी परचम की तैयारी का सिलसिला जारी है। 2 शिफ्टों में औसतन यौमिया 20,000 झंडे तैयार किए जाते हैं, जबकि झंडों की तैयारी का आगाज 1 जुलाई से हो जाता है और ऑर्डर्स के मुताबिक 13 अगस्त तक झंडे तैयार किए जाते हैं। कौमी परचम की तैयारी हम 1 जुलाई यानी कि 1 तारीख जुलाई से हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं और 13 अगस्त तक हम लोग रात के टाइम 12 बजे तक तैयारी में लगे रहते हैं कि लोगों को डिलीवर कर सके हम लोग वक्त के हिसाब से। तो अभी भी इंशाल्लाह यही तैयारी है, हम लोग 13 अगस्त तक काम मुकम्मल कर। झंडों को मुकम्मल होने के लिए 5 मराहल से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए 30 से 40 मुलाजमीन काम करते हैं। योमिया झंडा जो है 5 से 10 हज़ार तैयार करते हैं, तो डबल शिफ्ट में हम कभी 20 हज़ार तक चले जाते हैं। वो प्रोडक्शन के ऊपर बात होता है, कारीगर मेहनत कर रहे हैं, थक भी जाते हैं, लाइट का मसला है, बिजली का मसला होता है, तो फिर भी हम डबल शिफ्ट करके काम पूरा कर रहे हैं। महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग किसी हद तक रुकावट झंडों की तैयारी में बनती है। फैक्ट्री के मालकान का कहना है कि अगर लोड शेडिंग कम की जाए तो हदफ से ज्यादा भी काम हो सकता है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त